लोगों को हमने स्वीकार किया। इतनी व्यापकता अन्य धर्मों में, अन्य मतों में, अन्य पंथों में नहीं थी। अत्यंत व्यापक दृष्टिकोण से स्वीकार किया। जैसे जिस प्रकार से हम अन्य मतों का, अन्य धर्मों का, अन्य पंथों का हम अध्ययन करते हैं, तो आपको धीरे धीरे ये बात ध्यान में आएगी। यदि आप स्टडी प्रामाणिकता से करेंगे तो हम केवल हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं और हम कहें कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हमारी परंपरा श्रेष्ठ है, पर्याप्त नहीं। आप यदि अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से व्यापकता, जितनी स्वतंत्रता, जितनी व्यापकता हमारे परंपरा ने दी, उतनी अन्य परंपराओं से नहीं प्राप्त हुई। आज जितना चिंतन किया, उसको, उसका मनन करके, उसका विचार करके, उन दैवी सद्गुणों को हमारे जीवन में लाने का प्रयास करते हुए हम उसका विचार करेंगे और उसी में डूबते हुए कल के लिए फिर से एक बार उनके जीवन चरित्र को बताएंगे। Any queries, please feel free to ask for me. Good afternoon, sir. Swami Vivekananda was a brahmachari or a sannyasi? He was, means there are different steps. First, 25 years, all are brahmacharis, means by the rules. Brahmachari, then grihastha, then Vanaprastha, last sannyasi. But at last, he was a sannyasi. Okay. He was a sannyasi, and brahmachari means when he was studying, he was a brahmachari. But after the half of his life, he took the diksha of sannyas and he was a sannyasi. So, sir, actually, I'm a bit confused. Okay. But the Vivekananda has taken his teachings from Sardama. Is it correct? Vivekananda took the teachings from different places. Main his teachings he had completed near Ramakrishna, not Sardama. You have listened this. If you read the complete works of Swami Vivekananda, it's all really clear. So mainly he learned near Ramakrishna. He also came in Himalayas, now Rishikesh, where I am staying. And then also at Kailas Ashram he also learned something from Sardama and from different sadhus, different yogis he learned. But mainly he completed his study and study of realization, not only study. He completed near Ramakrishna Paramahansa, not Sardama. Thank you. Swamiji has delighted us so deeply that we have no more questions. Thank you so much, sir, for such thoughtful deliberations. Now we are what our thoughts have made us. So take care about what you think. Words are secondary. Thoughts live and travel far. By these famous lines of Swami Vivekananda, I end today's session. Classes एक ही तरीका है, असंभव की सीमा से भी आगे निकल जाना. By this inspirational quote of Swami Vivekananda, I, Stuti Yadav, welcome you all to the third day of your spiritual workshop on Swami Vivekananda's life history by Ved Shastra Sampann, Sri Pranab Shastri. Knowledgeable person. He was a great singer, great orator, a brilliant scholar as well. He achieved great heights at a very young age. Now, without much ado, I would like to request Sri Pranabji to throw some more light on Swami Vivekananda's life history through his thoughtful deliberation.
एव च एतेषां स्मरणात् नित्यम् आविर्भवति पौरुषम् आविर्भवति पौरुषम्. Yesterday we saw the life of small Narendra and how he went near a guru and kept the thing which was is in mind. अलग अलग प्रकार की जिज्ञासा मन में रहती थी. बचपन से अध्ययन में अत्यंत कुशलता और स्वदेश अपनी संस्कृति के बारे में अत्यंत प्रेम, अत्यंत महानता का भाव उनके मन में रहता. जब उनकी स्टडी शुरू हुई थी, बचपन की बात है उनकी, तब उन्होंने ये बात कही. जब इंग्लिश सीखने की बात आई तब उन्होंने कहा कि मुझे अपनी हिस्ट्री सिखाओ, मुझे अपनी लैंग्वेज सिखाओ, मैं इंग्लिश नहीं सीखूंगा. जब इंग्लिश उनकी स्टार्ट होने लगी तब उन्होंने ये बात कही थी, मैं इंग्लिश नहीं सीखूंगा. जिस विवेकानंद ने आगे चल के अपने भाषा प्रभुत्व के कारण पूरे विश्व में वेदांत का प्रचार प्रसार, भारतीय संस्कृति को फैलाया, उनको इंग्लिश सीखने के लिए मनाने में कई हफ्ते लग गए. तब किसी उनके विरुद्ध बुजुर्ग ने कहा कि यदि भारतीय संस्कृति का भी यदि तुम्हें ठीक ढंग से और पूरी तरह से गहराई में जाके यदि अध्ययन करना है, उसे जानना है, तो भी तुम्हें इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, उनके लिए उनको अध्ययन करना पड़ेगा. जब ये बात सुनी तब फिर वो राजी हुए कि अपनी संस्कृति का अध्ययन करने के लिए यदि अंग्रेजी सीखनी हो तो मैं सीखूंगा. ये उनका स्वदेश प्रेम है. अच्छा, ये उनकी केवल बचपन की मानसिकता थी क्या? नहीं. 1901 में जब बंगाल में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, अगली बात है अभी बता देता हूँ. 1901 में बंगाल में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तब स्वामी जी को मिलने आने वाले एक भी नेता से स्वामी जी ने कंपलसरी इंग्लिश में बात नहीं की. एक भी नेता से कंपलसरी उन्होंने हिंदी में ही बात की, हर एक नेता से. ये उनकी बचपन की मानसिकता नहीं थी, आगे भी उनकी यही दृष्टि थी. कहने का तात्पर्य क्या है? विवशतावश और किसी चीज को हासिल करने के लिए हम यदि कोई पराई चीज लेते हैं, सीखते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, तो उसके मानसिक गुलाम न होना, यह स्वामी जी का संदेश. उनका अध्ययन, उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही थी. उनके मन में यह संभ्रम ईश्वर के बारे में जो था, हमने कल देखा. रामकृष्ण परमहंस से जब उन्होंने यह सुना और उन्हें पहली अनुभूति भी रामकृष्ण परमहंस ने कराई, अनुभूति कराने के पश्चात फिर से उनका अपने दोस्तों के साथ रहना, अध्ययन करना वगैरह सब चलने लगा पहले के जैसे जनरल. और अचानक दुख की घड़ी उनके जीवन में, अत्यंत दुख की घड़ी प्रारंभ हुई और उन्हें पता चला कि उनके पिताजी हृदय विकार बंद पड़ने से उनका निधन हो गया. ये बात सुनते ही उसे पहले विश्वास नहीं हुआ. घर पे दौड़ता हुआ गया, जब देखा तो इतना दुख का पहाड़ टूट गया कि मेरे पिताजी चले गए. हमने पहले भी ये बात सुनी कि विश्वनाथ दत्त अत्यंत अमीर थे, पर उन्होंने संग्रह नहीं किया, उन्होंने बैंक बैलेंस इकट्ठा नहीं करके रखा. खूब पैसा कमाया, उसे लोगों में बांटा और खूब आनंद से रहे, संग्रह नहीं किया. और जाते जाते उन्होंने कुछ कर्ज भी लिया था और अचानक उनका देहावसान हुआ. दुख का पहाड़ टूट पड़ा पूरे परिवार पे. हुआ ऐसे कि कोई कमाने के लिए नहीं, नरेंद्र सबसे बड़ा लड़का, उसका अभी अध्ययन चल रहा है, सीख रहा है. ऐसा हुआ और उसके बाद जो सारे रिश्तेदार थे आसपास के, जिनके ऊपर उनके पिताजी ने उपकार किए थे, जिन्हें मदद की थी, उनकी भी दृष्टि बिगड़ गई और उन्होंने उसी
घर को हथियाने का प्रयास किया। जिस विश्वनाथ दत्त के द्वारा लोग अपने कोर्ट की समस्याएं हल करवाते थे, उनके परिवार वालों को आज अपना घर बचाने के लिए कोई वकील मिलना मुश्किल था। मुश्किल से वकील मिला, उसके ऊपर केस चली और अपनी तार्किकता की कुशलता से नरेंद्र ने खूबी से अपना कर्तव्य निभा के अपने घर को बचा लिया। जैसे ही घर को बचा लिया, अपने माँ की ओर दौड़ते हुए आए और कहा माँ की घर बच गया। बहुत अत्यंत विपरीत परिस्थिति थी घर जाने की नौबत। अच्छा, यह हुआ, घर बच गया, पर बाद में भी खाने के लिए कुछ नहीं, कमाने वाला कोई नहीं, परिस्थिति है। जब कमाने वाला कोई नहीं तो घर में गरीबी आना स्वाभाविक। 2 बहनें हैं घर में, 2 और छोटे भाई हैं। इस परिस्थिति में अत्यंत गरीबी आई और नरेंद्र बहुत सी बार, अब समझदार था, समझदार बच्चे को इस प्रकार की परिस्थिति में किस प्रकार इस समय को हैंडल करना चाहिए, इसकी भी सीख यह वो देते हैं। बहुत जब गरीबी आई तब नरेंद्र तो सादगी से पहले से ही रहता था, कल हमने सुना। उसके साथ साथ वह कभी कभी भोजन भी घर पे नहीं करता है। ये सोचता कि यदि मैं अकेला, यदि एक जन भोजन कम करेगा तो दूसरों को भी पर्याप्त मात्रा में, मेरे भाई बहनों को खाने मिलेगा। और घर पे माता जी को कहता, भुवनेश्वरी देवी को, कि माँ आज मुझे मेरे दोस्त के पास जाना है और मुझे वहां पे भोजन करना है। भोजन करना पड़ता था ऐसी बात नहीं। इस प्रकार से उपवास करते हुए, अपने दिनों को काटते हुए उन्होंने अपनी गरीबी के दिन बिताए। 2 बार इस प्रकार की नौबत आई कि केवल भूख के कारण बीच सड़क में बेहोश होकर नरेंद्र 2 बार गिरा है। 2 बार इतना सहा है। भूख से अत्यंत पीड़ा, सारी सब प्रकार की गरीबी, इधर अपने दुश्मन, अपने रिश्तेदार, इनसे भी निपटना, बहुत गरीबी के दिन बिताए। हुआ ऐसा कि इस प्रकार से करते समय, इस प्रकार के दिन काटते समय उन्हें याद आई एकाएक रामकृष्ण देवी। उन्होंने सोचा कि वो तो कहते हैं कि माँ मुझसे बात करती है, माँ मेरे साथ मिलती है, तो क्यों ना उनका सहारा लिया जाए। उनके पास गए। नरेंद्र ने बचपन से कभी अपने कपड़े की ओर, कभी अपने फैशन की ओर, कभी अपने किसी भी बाह्य चीजों की ओर ध्यान नहीं दिया। और अभी तो गरीबी के दिन थे, वो पूरी तरह से गरीबी का मूर्तिमान पुतला ही बन के आया था। खराब कपड़े, बिल्कुल अस्त व्यस्त उसकी सब चीजें। रामकृष्ण ने देखा, उसके पहले भी, रामकृष्ण के पास आने से पहले भी बहुत दिन हुए नरेंद्र रामकृष्ण के पास आया नहीं, तो रामकृष्ण ने उसको बुलावा भेजा लोगों के द्वारा। और लोग रामकृष्ण जी को आके, परमहंस जी को आके फीडबैक देते थे कि वो तो अभी नास्तिक बन गया, वो अभी आपके पास नहीं आया। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि मेरा पूरा विश्वास है वो नास्तिक नहीं होगा। और आगे फिर जब वो नरेंद्र रामकृष्ण के पास आया तो उन्होंने कहा कि इतने बुरे दिन मेरे चल रहे हैं और आप कैसे सह सकते हैं, आप कुछ तो कीजिए, आप अपनी माता को कहिए तो सही। रामकृष्ण ने कहा कि तू उस माता को मानता नहीं। अब उस समय वो ब्राह्मण समाज में थे तो निराकार 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 यही दिमाग में भरा हुआ था। आज भी बहुत से संस्थान निराकार ही सिखाते हैं और उसी को एक सत्य मानते हैं। वास्तविकता क्या है? भगवान का मूल स्वरूप आदि में निराकार होने के बावजूद भी बाद में वह साकार रूप में आके अपने लोगों पे, अपने भक्तों पे अनुग्रह करते हैं।
क्योंकि निराकार रूप कितना हार्ड है इसका हमने कल देखा। नरेंद्र को जब पहली बार उन्होंने भगवत साक्षात्कार की कृपा का, समाधि का अनुभव करवाया तो नरेंद्र अत्यंत चीख पड़ा, वो सह नहीं पाया क्योंकि वो बहुत कठिन है। और इसलिए उस कठिनता को दूर करने के लिए निराकार भगवान साकार रूप में आते हैं और लोगों के ऊपर दया के कारण साकार बन की कृपा करते हैं। यह मूल वास्तविकता है। अब यदि साकार को नहीं माने तो इससे नुकसान यह होता है कि उसके जब बहुत बड़ा दुख आता है, जब बहुत बुरा समय आता है, बुरी अवस्था आती है, तब किसको पुकारे यह प्रश्न रहता है और उसके लिए पुकारने के लिए कोई रहता नहीं। जो भगवान सगुण भगवान को मानता है वो उसको पुकारेगा। बहुत बुरे दिन हो तो वो यह समझेगा कि ये परीक्षा चल रही है भगवान की, इस प्रकार समझेगा। पर निराकारवादी को कोई आलम्बन नहीं है दुख के दिनों में। ठाकुर रामचंद्र परमहंस ने यही बात कही कि तू मेरी माँ को मानता नहीं, इसलिए तुझे भोगना पड़ रहा है। विवेकानंद जी को भी यदि, नरेंद्र को भी यदि इस प्रकार की अवस्था आती हो तो इस पे हमें विचार करना चाहिए। रामचंद्र परमहंस ने साफ साफ बात कही कि तू यदि माँ को यदि माने तो ये बात हो सकती है। नरेंद्र ने कहा कि आप मेरे लिए अपनी माँ को मांगिए, अपनी माँ को कहिए। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि आज तक मैंने माँ से कुछ मांगा नहीं, आज तक। देखिए हम भी भक्त है और ठाकुर रामकृष्ण परमहंस भी भक्त थे, इसलिए इसमें तुलना नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरे जीवन में किसी भी प्रकार की सकामता के साथ माँ की आराधना नहीं की। सकामता मीन्स विद डिजायर्स, विदाउट टेकिंग एनी डिजायर ही वर्शिप द भगवती। इस प्रकार से रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मैंने तो अभी तो कुछ मांगा नहीं है और मांगना मेरे लिए मुश्किल है, पर ऐसा है कि तुम मांगोगे आज तो ये निश्चित बात है कि तुम्हें जो मांगोगे वह मिल जाएगा। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि शाम को आओ, रात को माँ से मांगो। नरेंद्र आया और मंदिर में गया। मंदिर में गया और माँ के सामने खड़ा होके अचानक उसे क्या हुआ पता नहीं। उसने ये नहीं कहा कि मुझे नौकरी चाहिए, मुझे अमीरी चाहिए। उसने कह दिया कि हे माँ, मुझे ज्ञान, भक्ति और वैराग्य दो। प्रणाम करके चला आया। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि हाँ रे मांग लिया। तो फिर उसके ध्यान में आया कि जो मांगना था वो तो मांगा नहीं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा फिर से चले जाओ। उसके बाद फिर गया, फिर सामने जब भगवती को देखा कुछ सूझा नहीं और फिर से वही मांगा, माँ ज्ञान दो, भक्ति दो और वैराग्य दो। फिर आया। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि अरे भाई मांग लिया है नहीं। उसने कहा फिर भूल गया। रामकृष्ण परमहंस ने कहा आज का दिन महत्वपूर्ण है, जाओ। तीसरी बार जब गए तब मन में यही विचार आया कि साक्षात जगत जननी के पास, राजा के पास जाके मुट्ठी भर चावल मांगना जैसा है वैसा ही राजराजेश्वरी, जगत जननी, जगदम्बा, पूरे विश्व की माँ के पास जाके नौकरी और अमीरी मांगना ये इतनी तुच्छ बात। फिर से यही बात कही, माँ ज्ञान दो, वैराग्य दो, भक्ति दो। आए और रामकृष्ण परमहंस से कहा कि मैं वो मांग नहीं पाया। रामकृष्ण परमहंस ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तू वो मांग नहीं पाया पर तूने आज माँ को माना। आज भगवान के, ईश्वर के सगुण स्वरूप को तूने माना। इस कारण से तुझे मैं ये आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे परिवार वालों को सामान्य अन्न, सामान्य वस्त्र आदि की कभी कमी नहीं रही। नरेंद्र चला गया। सहल के लेखक के साथ किताबों का अनुवाद करने का काम उसे मिला। सामान्य कुछ धनराशि आती थी और उनके परिवार की चिंता सामान्य रूप से होने लगी। आगे इसी प्रकार से अपने परिवार को संभालते हुए, परिवार को संवारते हुए अपने
जीवन को व्यतीत कर रहा था, अपना अध्ययन कर रहा था, अपनी साधना कर रहा था। रामकृष्ण के पास उसका आना जाना लगा रहता। रामकृष्ण के पास उसने अभी अनुभूति भी की थी, उसने अभी देखा भी था कि उनके आशीर्वाद का प्रभाव कैसा है। इसके बाद रामकृष्ण के पास उसका जाना आना चला रहता और उसे इस बात की अनुभूति हुई कि जिस ईश्वरीय तथ्य का मुझे ज्ञान चाहिए, जिस ईश्वर का मुझे अनुभव चाहिए, उस ईश्वर की प्राप्ति की साधना में जितनी स्टेप्स है, उन सारे स्तरों के अनुभवों का इसके पास संचय है और इसने सारे प्रकार के अनुभव इसके पास इकट्ठे। नरेंद्र अभी रामकृष्ण के सहवास में, नित्य सहवास में रहने लगा और इसके बाद उन्होंने ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें सन्यास के वस्त्र प्रदान करके सन्यासी कह दिया। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस सन्यासी के वस्त्र दे दिए और कहा कि अभी तुम सर्वसंग परित्यागी सन्यासी हो। इसके साथ साथ नरेंद्र ने उनकी खूब सेवा भी की, सेवा पूर्वक सन्यास, खूब कठोर सेवा की। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को अंतिम दिनों में कैंसर की बीमारी हुई, अत्यंत कष्ट होता था और उस समय यह संभ्रम था उस काल में, कैंसर यह फैलने वाली बीमारी है। इसलिए सबको यही लगता कि रामकृष्ण के सहवास में यदि रहेंगे, रामकृष्ण जी के निकट यदि रहेंगे तो यह रोग हमें भी हो सकता है। इस प्रकार का डर सबको था, इसलिए उनके सेवक, उनके शिष्य कतराने लगे। विवेकानंद जब नरेंद्र ने बात देखी तब उसके बाद उसने कुछ तो भी सोचा कि भाई इसके ऊपर उपाय करना चाहिए। एक दिन डॉक्टर आए, गले को छेद हुआ था, वहां उसका साफ किया हुआ पानी ग्लास में रखा था। डॉक्टर चले गए। सारे शिष्य जब थे तब सबके सामने, सबके देखते हुए नरेंद्र ने वो ग्लास उठाया उस घूम के पानी का और वो सारा पानी पी गए, सबके देखते। अपूर्व की गुरु भक्ति। सबने कहा कि अरे भाई तुम्हें अभी कुछ होगा। नरेंद्र ने कहा मुझे कुछ नहीं होगा। इस प्रसंग के बाद इस बात को सबने स्वीकार किया कि अभी रामकृष्ण की सेवा में हम सबको रहना चाहिए और उसके बाद कोई कतराने नहीं लगा। यह जब साहसी कार्य उसने किया, अत्यंत कुशलता, अत्यंत पूरी मेहनत से रामकृष्ण की सेवा कर रहा था। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस इसके बाद एक बार नरेंद्र के साथ घूम रहे थे तो अचानक कुछ बातचीत होने लगी तो उन्होंने नरेंद्र से कहा कि नरेंद्र, मैं जब साधना कर रहा था तब साधन काल में मुझे सिद्धियों की प्राप्ति हुई थी। सिद्धियों की मुझे प्राप्ति हुई थी और मैं वह सारी चमत्कारिक सिद्धियां मैं तुझे देना चाहता हूं। ठाकुर रामकृष्ण ने कहा, नरेंद्र ने कहा कि ठाकुर, इससे मुझे ईश्वर प्राप्ति में कुछ लाभ हो सकता है क्या, मुझे बताइए। इससे मुझे ईश्वर प्राप्ति में कुछ लाभ हो सकता है क्या, इस बात को आप बताइए। सिद्धियां एक होती रिद्धि और एक होती सिद्धि। रिद्धि मीन्स अपनी भौतिक उन्नति। भौतिक उन्नति के ही पीछे यदि इतने सब लोग पागल है तो सिद्धियों की प्राप्ति, बड़े बड़े योगी भी सिद्धियां छोड़ने का मोह नहीं कर सकते, उस मोह में अटक जाते हैं, वो अवसर छोड़ना नहीं चाहते। नरेंद्र ने कह दिया कि ईश्वर प्राप्ति में जो सिद्धियों की सहायता नहीं है, यदि उनका उपयोग नहीं है तो मुझे वो सिद्धियां नहीं चाहिए। रामकृष्ण प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि निश्चित तुम ईश्वर का साक्षात्कार कर पाओगे। जो इतना निर्लोभ है वह ईश्वर को देख सकता है, वो ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। निर्लोभता के बिना यह बात नहीं आ सकती। स्वामी विवेकानंद जी ने आगे अपने लेक्चर्स में कहा है, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ बीइंग रिलीजियस और बीइंग स्पिरिचुअल। स्वामी जी ने अपने लेक्चर्स में कहा है कि अनसेल्फिशनेस इज दैट मेजरमेंट। कौन कितना निर्लोभी है
इसके ऊपर यह निश्चित होता है कि वह कितना धार्मिक है, वह कितना आध्यात्मिक है। आज भी मैंने चर्चा करते समय किसी से कहा था, पूजा पाठ करना केवल धार्मिकता नहीं है, वह धार्मिकता का एक छोटा अंग है, पर सद्गुणों का विकास यह मुख्यतः धार्मिकता है। लोक का प्रलोभन देने के पश्चात भी नरेंद्र उसमें फंसे नहीं और अपनी साधना में डटे हैं। कैंसर का भीषण प्रकोप 15 अगस्त 1886 इस दिन रामकृष्ण परमहंस ने देह रखा। उस दिन उनकी महासमाधि हुई और सारे शिष्यों में, सारे गुरु बंधुओं में शोक फैल गया। नरेंद्र ने कहा, यह शोक करने का समय नहीं है। जो चीज, जो उपदेश ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने हमें दिया, जो बात उन्होंने हमें सिखाई, अब उस पे चल के हमें यह बात दिखानी है। यह हम उनके वास्तविक शिष्य है और रोने धोने से कुछ होगा नहीं। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने जाने से पहले कहा था, नरेंद्र के साथ उनके और भी गुरु बंधु थे जो उनके साथ रामकृष्ण से दीक्षित थे और उनके साथ साधना करते थे। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि तुम सबको नरेंद्र संभालेगा। उम्र से भी बड़े थे नरेंद्र सबसे, और अपने सारे गुरु बंधुओं को लेके गुरु के पश्चात किराए के मठ में वहां रहने लगे और वहां अपनी साधना करने लगे। अब देखिए ये मैनेजमेंट कितना कठिन है। सब छोटे छोटे बच्चे हैं, सबको संभालना, और सबके माता पिता तो यही कहते थे कि तुम्हारा दिमाग फिर गया है, उस दक्षिणेश्वर के साधु ने कुछ करके तुम्हें वश किया है और तुम उसके पीछे पड़े हो। अब वो तो चले गए। अब उनके माता पिता नरेंद्र के साथ आर्गुमेंट करते कि तुम उसे भेजो, तुमने क्यों रख रखा है उसे। सबके साथ डील करना यह नरेंद्र का काम होगा। कितनी बढ़िया स्किल है इसको, और हार्ड स्किल है, हाउ टू डील विद अनवांटेड पर्संस। सबके माता पिता आते, कुछ कारणों से परीक्षा वगैरह होती, कुछ स्टडी वगैरह करनी होती, कुछ महत्वपूर्ण काम होता तो बच्चों को नरेंद्र घर भेजते और सबको संगठित करके साधना करते। अब देखिए यह सबसे महत्वपूर्ण उनके जीवन का जो सबसे बेसिक और सबसे स्ट्रॉन्ग, स्वामी विवेकानंद इतने श्रेष्ठ और इतने महान, इतने प्रसिद्ध और इतने प्रभावी क्यों बन पाए, इसका कारण इस प्रसंग में है जो अभी बताने जा रहा हूं। देखिए प्रैक्टिकल बात, स्वामी विवेकानंद जी जितना कोई पढ़ भी ले फिर भी वो उनके जितना प्रभावी नहीं बन सकता। कहने का तात्पर्य क्या है, केवल अध्ययन से महानता हासिल नहीं की जा सकती। उसके लिए उन्होंने किया क्या, इसका बहुत मार्मिक चिंतन है। आगे जो होगा वो तो आप सबको पता भी है, पर what was the key for success of the विवेकानंद, उस भाग का विवेचन, उस भाग का चिंतन, उस भाग का श्रवण हम आज करेंगे। इसलिए आज आए हुए विशेष भाग्य वो नरेंद्र अपने सारे गुरुबंधुओं के साथ रह के, सारे गुरुबंधुओं को इकट्ठा अपने साथ रख के साधना करता है। अब साधना तो जैसी ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें सिखा रखी थी, उस प्रकार की साधना स्वयं करता है और अपने छोटे गुरुबंधुओं से करवाता है। उनके गुरुबंधुओं ने अपनी स्मृतियों में लिख रखा है कि नरेंद्र, देखिए लेवल जब साधना की ऊंची हो जाती है तब बेसिक नीड्स भी अनावश्यक हो जाती है। यह नरेंद्र आश्रम के मठ के सब काम निपटा के रात को 10 बजे ध्यान में बैठता बगीचे में, और सुबह 4 बजे उठता। उनके गुरुबंधुओं ने ये बात लिख के रखी है कि जैसे ही वो बैठता 15-20 मिनट के अंदर ऐसा दृश्य दिखता कि मानो मच्छरों की चद्दर उसने ओढ़ रखी हो, और पूरे रात वो उसके शरीर पे रहते। सोचिए जरा, और उनका ध्यान चल रहा है।
जब अपना कंसंट्रेशन इतना बढ़िया फोकस होता है तब ये बात होती इजीली ध्यान में भी आने वाली बात है। कहने का तात्पर्य क्या है कि इतने दुख में, इतने कठोर साधना में उन्होंने दिन बिताए। अच्छा, और भी एक मजे की बात, 11 जने थे गुरु बंधु कुल, उनमें केवल 2 पूरे वस्त्र थे, एक लुंगी और एक ऊपर का उपवस्त्र, केवल 2 थे। इसका मतलब माने एक जोड़ी थी। और यदि एक समय किसी को किसी काम से यदि बाहर जाना है तो केवल एक ही आदमी जा सकता है, केवल एक ही आदमी। इतने गरीबी में उन्होंने दिन बिताया, एक ही आदमी बाहर जा सकता था। 11 सितंबर के दिन फेमस हुए विवेकानंद हम सब जानते हैं। जब विवेकानंद जी का फोटो देखते हैं, बढ़िया आकर्षक उनकी तस्वीर, उनका चेहरा देखते हैं तो तुरंत स्फूर्ति आ जाती है, पर उसके पीछे साधना किए हुए इस नरेंद्र को जानने की आवश्यकता है। दिस इज द की ऑफ सक्सेस ऑफ हिज लाइफ। अत्यंत कठोर साधना की, गरीबी में दिन बिताया। अच्छा, ये सब वेल एजुकेटेड थे, सब इनको बुरा कहते कि बढ़िया सीखते, नौकरी करते, कमाते, आनंद से रहते, और अब देखो गरीबों जैसे रहते हैं, भिखारियों जैसे रहते हैं। कमाने का तो कुछ साधन था नहीं। 11 जनों में से रोज कोई ना कोई भिक्षा मांग के लाता। अब मांग के लाता तो लोग चुपचाप नहीं देते, हर रोज बातें सुनाते, और बातें सुना के फिर परोसते। इतना अपमान सहना, इतने दुख सहना, इतनी गरीबी। अच्छा, भिक्षा मांग के भी क्या मिलता है? कभी कभी चावल, बस कच्चा चावल खा के भी ये लोग रहे हैं। जब आप पूरी लाइफ हिस्ट्री पढ़ेंगे तब ये इतना मार्मिक प्रसंग है और इतना सूक्ष्म इसमें स्वामी विवेकानंद जी के सहनशीलता का रहस्य इसमें दिखता है कि आंखों में आंसू आ जाते। बहुत गरीबी में दिन बिताए, और केवल बिताए नहीं, काटे नहीं, उसके साथ साथ साधना की। यह महत्वपूर्ण बात। उसके साथ साथ साधना की और किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं, जो मिले उसमें संतुष्ट। उसके बाद उनके गुरुबंधुओं ने यात्रा करने की इच्छा व्यक्त की। नरेंद्र ने किसी भी गुरुबंधुओं पे, कभी भी गुरुबंधुओं पे अपनी इच्छा लादी नहीं। उनसे छोटे भी अपने गुरुबंधु थे, सबको तीर्थ यात्रा करने के लिए उन्होंने परमिशन दी, कुछ तीर्थ यात्रा करने के लिए गए। नरेंद्र को भी अभी लगने लगा कि मुझे भ्रमण करना चाहिए। जिस भारत माँ की मुझे सेवा करनी है, उस भारत माँ को मुझे पहले देखना चाहिए। क्या किया उन्होंने? पहले गुणों को आत्मसात किया और फिर अभी परिस्थिति देखने के लिए गए। देखिए, ये जो मॉरल वैल्यूज है, यह जो सद्गुण है, जब तक यह विकसित नहीं होंगे तब तक महानता हम हासिल नहीं कर सकते। और यदि महानता हासिल कर भी ली, नेम एंड फेम की, तो वह भी पर्याप्त नहीं। इसलिए पहले सद्गुणों का बेस हमारा पक्का हो, इस पे हमारा कंसंट्रेशन विशेष होना चाहिए। इसीलिए किस प्रकार के सद्गुणों को हमें जीवन में लाना है? सद्गुणों की साधना में
परंपरा में केवल, मैंने अभी भी आपसे कहा, पूजा पाठ यह धर्म का छोटा अंग है, धर्म नहीं, छोटा अंग है उसका। हमारी परंपरा में आप देखेंगे गीता में धार्मिक सज्जन किसे कहा गया, उसमें 26 सद्गुणों की लिस्ट गिनाई गई है। अभयं सत्वसं शुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानंदमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तव आर्जवम् आदि आदि 16वें अध्याय में आप देखेंगे 26 सद्गुणों के नाम वहां गिनाए गए, और यह जिसमें है वह धार्मिक, अर्थात हमारे यहाँ धार्मिक उसे कहा जाता है जो सद्गुणों से संपन्न है। उसमें उन 26 सद्गुणों में यह अनिवार्यता नहीं कि उसकी मेरी में भक्ति हो, भगवान ने ये बात नहीं कही है, अनिवार्यता नहीं है। जिसमें सद्गुण है वह धार्मिक है, यह हमारी परंपरा की उदार भावना है, और ये अन्य धर्मों से भी यह हमारे धर्म की विशेषता है। इसलिए किसी भी महापुरुष का चरित्र देखते समय उसके जीवन के सद्गुण हमारे जीवन में टैली करते हुए इस प्रकार हमारे जीवन में उतरे, इसका प्रयास बहुत आवश्यक, अनिवार्य है। अत्यंत घोर साधना की, उसके बाद नरेंद्र घूमने निकला भारत भ्रमण के लिए। मठ से निकले, बंगाल से, सबसे पहले वृंदावन पहुंचे, अलौकिक अनुभूतियां हुई। उसके बाद वृंदावन से आते समय हाथरस स्टेशन पे उन्हें स्टेशन मास्टर मिले। स्टेशन पे स्वामी जी सोए थे, और जब ही उन्हें वो स्टेशन मास्टर मिले, उन्होंने स्वामी जी को प्रणाम किया, और स्वामी जी की ओर देखते ही उन्हें यह भास हुआ कि यह कोई दिव्य महापुरुष है, और इससे हमें दीक्षा लेनी चाहिए, इसे हमें गुरु बनाना चाहिए। यह भाव उनके मन में आया। पर पहले स्वामी जी को अपने घर लेके गए, स्वामी जी का स्वागत किया, स्वामी जी का बढ़िया सत्कार किया, और उन्होंने बाद में बात यह सामने रखी कि स्वामी जी मुझे आपसे संन्यास लेना है। स्वामी जी ने बहुत इतनी प्रैक्टिकल वेदांत मीन्स, स्वामी जी ने उसे कहा कि तुम स्टेशन मास्टर हो, और तुम यदि इस समय अभी झोली लेके तुम्हारे अंडर काम करने वाले लोगों के पास जाके, जो तुम्हें सैल्यूट करते थे, उनके पास जाके तुम यदि भिक्षा मांग सकते हो अभी, तो मैं तुम्हें संन्यास दे सकता। एक स्टेशन मास्टर को उसके अंडर काम करने वाले लोगों के पास जाके भिक्षा मांगने के लिए कही, और वास्तव में वो सच शिष्य था, उसने वैसा किया, और स्वामी जी ने उसे संन्यास दिया। परखना इसे कहते हैं। जब तक अहंकार नहीं गया तब तक संन्यास की योग्यता नहीं आता। फिर वो, उनका नाम है शरद चंद्र चक्रवर्ती। बाद में फिर वो स्वामी जी के साथ यात्रा में रहे, और फिर आगे स्वामी जी की यात्रा बढ़ी। कितना ही सत्कार हो, कितना ही सम्मान हो, कितनी ही सुख सुविधा मिली, स्वामी जी एक जगह पे ज्यादा टिके नहीं, रहे नहीं, क्योंकि उन्हें सम्मान में नहीं फंसना था। उन्हें अपने भारत माता को ठीक से देखना है, किस प्रकार से लोग पीड़ित है, किस प्रकार से लोग आपदा में है, किस प्रकार से हमारे धर्म की ग्लानि है, इसका परीक्षण, इसका निरीक्षण, इसका अभ्यास उन्हें करना था। इसलिए वह कहीं भी ज्यादा दिन रहे नहीं, और पूरी तरह से अपने भ्रमण की ओर ध्यान दिया। जब आगे मथुरा से वहां निकले, आगे की प्रवास के लिए, अनेक राजा महाराजा, अनेक संस्थानों में जाना हुआ। अलवर में जाके पहुंचे। अलवर के राजा ने उन्हें अपने महल में बुलाया और उनसे चर्चा की। तब अलवर के राजा शिकार करके आए थे, और उन्होंने स्वामी जी से कहा, उन्होंने स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी, आपकी इतनी अच्छी योग्यता है, आपके भाषा में बोलता हूँ,
उस राजा ने सीधा कहा कि स्वामी जी आप बढ़िया करियर बना सकते थे, यू कैन अर्न मच नाउ ऑल्सो, देन व्हाई यू आर रोमिंग लाइक दिस ऑन बेगिंग। हमने देखा अभी कि एक और करियर है और दूसरी ओर ईश्वर प्राप्ति की इच्छा। स्वामी जी ने अपने करियर को वास्तव में बाजू में सार के अपने करियर को पूरी तरह से विश्राम देके साधना में लग गए थे योग की महानता। राजा ने जब ऐसे पूछा तब स्वामी जी ने कहा कि आप ये बताइए, मेरे प्रश्न का आप पहले उत्तर दीजिए कि आप शिकार करने अंग्रेजों के साथ क्यों घूमते हैं। सबको अचंबा लगा कि राजा को इस प्रकार से प्रश्न पूछ रहे, अब पता नहीं क्या होगा। राजा थोड़े सोच में पड़ गया और कहा कि मैं ये बता नहीं सकता, आई कांट टेल ये ऐसा मैं क्यों करता हूँ, पर इतना जरूर है कि मुझे ये बहुत पसंद है शिकार। स्वामी जी ने ऐसा कहा कि जैसे आपको ये पसंद है, मुझे परिव्राजक की तरह साधना करते हुए घूमना पसंद है। ये बात स्वामी जी ने कही। उसके बाद कुछ अन्य भी चर्चा हुई। महाराजा ने कहा कि स्वामी जी आई डोंट बिलीव इन आइडल वर्शिप। स्वामी जी ने कहा मजाक कर रहे हो? राजा ने कहा नहीं, वास्तव में इस पत्थर और लकड़ी की मूर्तियां आदि में मेरा तो विश्वास नहीं है। स्वामी जी ने दूर टंगा हुआ एक फोटो देखा। उन्हीं राजा सेवकों से कहा कि वो फोटो लाओ। फोटो लाया गया। सेवकों को कहा कि आप इस पर थूकिए। सेवक एकदम आश्चर्यचकित रह गए और देखते रह गए कि वो कुछ नहीं कर पाया। स्वामी जी ने कहा फिर से थूकिए। उन्होंने कहा ये तो हमारे महाराज है। स्वामी जी ने कहा कि ये महाराज का है, ये तो कागज का टुकड़ा है, महाराज नहीं है ना। अब सेवकों को क्या बोले कुछ ध्यान में नहीं आ रहा, पर स्वामी जी ने फिर कहा कि मुझे पता है कि तुम इसमें थूक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कि इससे तुम्हारे महाराज का अपमान होगा। ठीक उसी प्रकार उस निराकार परमात्मा को उसका यदि सम्मान करना है तो किसी मूर्ति का, किसी आइडल का, किसी स्टैच्यू का आलम्बन लेके प्रारंभ में साधना करनी ही पड़ती है और उसमें कोई दोष नहीं। और विशेषता यह है, स्वामी जी ने राजा से कहा कि आज तक मुझे कोई भी ऐसा कहता हुआ नहीं मिला कि हे पत्थर मेरे ऊपर कृपा करो, मेरी इच्छा पूरी करो। हर भक्त यही कहता है कि हे भगवान, अर्थात वो पत्थर की पूजा नहीं करता, वो मूर्ति की पूजा नहीं करता, वो मूर्ति में भगवान की पूजा करता है, मूर्ति में सच्चिदानंद गुरु का वो अनुभव करता है। इस प्रकार से जब राजा ने बात सुनी तो राजा ने कहा कि इस दृष्टि से मुझे कभी समझाने वाला कोई मिला नहीं और वास्तव में आज मेरी आंखें खुली। मूर्ति की पूजा नहीं है, मूर्ति में भगवान की पूजा है। देखिए परमात्मा सर्वव्यापक है, इस बात से आप सहमत हैं? परमात्मा व्यापक है या नहीं? आवाज नहीं आ रही। यस। फिर यदि ठाकुर रामकृष्ण परमहंस भी इसी प्रकार से एक्सप्लेन करते थे, इसी प्रकार से समझाते थे। यदि कोई निराकारवादी आता और कहता कि मूर्ति पूजा गलत है तो वो उसे यही प्रश्न करते थे कि भाई तुम्हारा परमात्मा सर्वव्यापक है या नहीं? तो वो कहता है फिर यदि तुम्हारा परमात्मा सर्वव्यापक है तो वो इस मूर्ति में नहीं, क्यों नहीं है? बताओ। कोई कुछ बता नहीं पाता था। इसलिए सर्वव्यापक परमात्मा मूर्ति में होना ही चाहिए। वो अपनी भावना से प्रकट होता है। विवेकानंद जी ने इस प्रकार से कहने के बाद अलवर राजा मान गए। आगे स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी यात्रा आगे चालू रखी। यात्रा के दौरान खूब कष्ट, और स्वामी जी ने कितनी ही यात्रा पैदल की है, लगभग यात्रा उन्होंने पैदल की है। वाहन, ट्रेन, इसकी सुविधा उनके पास उस समय नहीं थी। और दूसरी बात कि वो अपने पास धन भी संग्रहित नहीं रखते थे। जिन राजा महाराजाओं के पास जाते वो कुछ देते तो भी स्वामी जी उसका स्वीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि मैं अभी फिलहाल साधना में हूँ और साधना में इकट्ठा करना
यह निषिद्ध माना गया। सन्यासी को तो इकट्ठा करना ही नहीं है। मैं साधना में हूं, मैं कुछ इकट्ठा नहीं कर सकता। स्वामी जी वैसे ही आगे जाते हैं। उनके गुरु ने उन्हें सीख दे रखी कि कामिनी और कांचन, इससे सावधानता तुम्हें रखनी है, और यदि इसमें यदि सफलता प्राप्त होगी तो ही तुम ईश्वर की प्राप्ति और कुछ अनुभूति कर पाओगे। कल हमने देखा कि केवल चर्चा करना, केवल आर्गुमेंट्स करना एक बात है, और उसको रियलाइज करना यह एक दूसरी बात। स्वामी जी की यात्रा आगे चलती रही। अलवर से निकले, जयपुर जैसे रजपूतों के इलाकों में आए, जयपुर में जैसे आए, वहां के भी राजा ने उनका सम्मान किया, उनका आदर सत्कार किया। देखिए, वहां का राजा उन्हें गुरु मानता है, जयपुर का। और स्वामी जी ने वहीं पे दरबार के अच्छे विद्वान पंडित से स्वामी जी ने संस्कृत के व्याकरण का अध्ययन किया। जहां से सीखने मिले वहां से सीखना चालू करो। यह स्वामी जी की विशेषता। प्रेस्टीज इशू, यह जो हमें होता है, ईगो, यह शुरू से नहीं था। जहां से सीख मिले, अब वो राजाओं में गुरु मानता है और उससे यह सीख रहे थे। संस्कृत सीखने की प्रेरणा भी उन्होंने युवाओं को दी और कहा कि जब तुम संस्कृत सीखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि भारतीय संस्कृति क्या है, भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता क्या है। अब कल भी हमने इस बात की चर्चा की कि हम केवल भारतीय है इसलिए हम कहते हैं कि भाई हमारी संस्कृति सर्वोच्च है, पर उसका वास्तव में हमने अध्ययन कितना किया है, और उसका यदि अध्ययन करना हो तो संस्कृत भाषा अनिवार्य है। ऐसा स्वामी जी युवाओं को उस समय प्रेरित करते थे। स्वामी जी स्वयं भी सीखते थे। बाद में स्वामी जी अजमेर आए। अजमेर में भी उन्होंने संस्कृत का, वहां पे भी राजभवन में रुके और वहां पर भी वहां के विद्वान पंडित से उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया। ईगो नाम की चीज नहीं। फिर आगे गुजरात में गए। गुजरात में भी शंकर शास्त्री जी से उन्होंने व्याकरण और वेदांत दोनों का अध्ययन किया। उस समय गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य वहां किसी निमित्त आए थे, सभा हुई थी। उन्होंने भी स्वामी जी की कुशलता, उन्होंने भी स्वामी जी की विद्वत्ता, उन्होंने भी स्वामी जी की योग्यता देके उनकी प्रशंसा की। स्वामी जी सीखते रहते थे, जहां से मिलता वहां से सीखते रहते थे। बहुत सी बार आप जब उनका चरित्र पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि स्वामी जी ने कितने ही विषय पत्रों द्वारा सीखे। गहन विषय फिलोसॉफी के हैं, व्याकरण के हैं, और भी अन्य अन्य विषयों के हैं। उन्होंने पत्राचार द्वारा शिक्षा सीखी। बिल्कुल ईगो नहीं। जहां से सीख मिलती है, अपनी कितनी ही प्रतिष्ठा हो, कितना ही सम्मान हो, सब जगह से सीखना ये उनका पहले से स्वभाव था। और जो इस प्रकार से रह सकता है वही निश्चित अपने जीवन में उन्नति करेगा। क्योंकि मूलगामी, कल भी हमने देखा था, नरेंद्र का यह स्वभाव था कि विषयों का मुझे मूलगामी ज्ञान होना चाहिए, केवल उसके सिलेबस में लगाए हुए किताब पढ़ना पर्याप्त नहीं। फिलोसॉफी का, वेदांत का और व्याकरण का उस प्रकार से भी स्वामी जी अध्ययन करते थे। आगे पोरबंदर के बाद, गुजरात के बाद स्वामी जी दक्षिण भारत की ओर बढ़े। मुंबई से जब पूना ट्रेन से आ रहे थे, उनकी बात सुनी नहीं, राजा ने उनको टिकट करा दिया। मुंबई से पूना आ रहे थे, वहां एक युवक से उनका परिचय हुआ ट्रेन में बैठे हुए। बहुत अच्छी चर्चा हुई, वह युवक भी प्रभावित हुआ, स्वामी जी भी उस युवक से बहुत प्रभावित हुए। और पूना में स्वामी जी आए। उस युवक ने कहा, स्वामी जी आपको हमारे यहाँ रहना पड़ेगा। 3 दिन स्वामी जी उसके घर रहे। उसका नाम है लोकमान्य तिलक जी। जब तिलक जी से चर्चा की तो स्वामी जी अत्यंत प्रभावित थे। तिलक जी भी स्वामी जी की विद्वत्ता, स्वामी जी का त्याग, स्वामी जी की तपस्या देख के बहुत प्रभावित थे। 3 दिन तिलक जी ने अपने घर पे उन्हें रोका। तिलक जी ने बहुत आग्रह करने के पश्चात भी स्वामी जी ने कहा कि अभी मुझे आगे जाना होगा। इस पूरे प्रवास में उन्होंने भारत की गरीबी देखी, भारत की दुर्दशा देखी, और अत्यंत उनके मन में करुणा का भाव उदित होता।
वैसे ही आगे गए, महाराष्ट्र में उनकी यात्रा हुई, आगे कोल्हापुर आए, कोल्हापुर से फिर दक्षिण भारत में आए, मैसूर में आए। वहां के भी जो राजे रजवाड़े थे, वहां के भी जो महाराज थे, अत्यंत प्रभावित हुए स्वामी जी से। उनकी विद्वत्ता, त्याग, तपस्या देखिए इसमें उनके रहन सहन में बिल्कुल वीआईपीनेस नहीं है, बिल्कुल सिंपल रहते, साधक की जैसी चर्या होनी चाहिए वैसा उनकी रहनी शैली उस प्रकार थी। उसके बाद रामेश्वर का दर्शन किया, फिर नीचे आए कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में द विवेकानंद रॉक आप आज भी देखते हैं, कई जनों ने देखा होगा, गए होंगे। वहां पे उस शिला पे 3 दिन, एक तो उसमें उस पे गए कैसे, आज भी वहां जहाज से ही अक्सर जाते हैं, जहाज से ही जाते हैं। स्वामी जी तैर के गए समुद्र में उस शिला पे, और तैर के गए, न कुछ खाना न कुछ पीना, अब कुछ व्यवस्था तो थी नहीं, 3 दिन लगातार